हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रुद्र दमन के जूनागढ़ के गिरनार इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इस वीडियो को पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो को हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश। सो रुद्र दमन's जूनागढ़ Girnar inscriptions were of the time period of 150 AD. It is inscribed on a stone piece which is situated at Girnar Hills near Junagadh city of Gujarat. It is written in Sanskrit language and Brahmi script. It is the first long Sanskrit inscription of India. It was inscribed by Saka ruler Rudradaman. According to this inscription, Rudradaman defeated various kings and annexed their states. Akara, that is East Malwa; Avanti, that is West Malwa; Anup, Anarth, North Kathiawad. Anarth was North Kathiawad, and Saurashtra, that is South Kathiawad. Subra, that is the region of the Sabramati. Maru, that is the region of Marwad. Kacha, that is the region of Kutch. Sindhu, the east of Lower Indus. Suvira, the region that is the region of west of Lower Indus. And Kukura, Aprant, that is the region of North Konkan. And Nisbada, that is the region of West Vindhya and Aravali. These were the regions which he defeated, and of which the kings he defeated and annexed in his territory. From this inscription, we get to know the history of Sudarshan Lake also. According to this inscription, this Sudarshan Lake, which existed from the time period of Chandragupta Maurya and Ashoka, as we know that Pushyagupta, the provincial governor of Chandragupta Maurya, built this Sudarshan Lake, and Yonraj Tusvak, which was an Iranian, he was the provincial governor of Ashoka. He repaired this lake. So this lake, Sudarshan Lake, from this Girnari inscription, we get to know that this lake burst in the time of Rudradaman. There was a lot of destruction. Sudarshan became Dodarshan. Rudradaman repaired this lake from his own pocket and had not imposed any tax on the public. The repairing work was done under the supervision of Suvishak, the provincial governor of Rudradaman. This is the first inscription in which the first time Lakshmi together with Vishnu mentioned. So this was the first inscription in which the goddess Lakshmi along with Vishnu is mentioned. So this is about the Rudradaman Junagadh, that is the Girnar inscription. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. सो रुद्रदमन के जो जूनागढ़ के गिरनार इंस्क्रिप्शन है, इनका टाइम पीरियड लगभग 150 AD के अराउंड का है. इन इंस्क्रिप्शंस को स्टोन पीस पे काव किया गया है, और ये सिचुएटेड कहाँ पे, गिरनार हिल्स में है. गिरनार हिल्स अब कहाँ पे है, जूनागढ़ सिटी में, गुजरात में. इनको संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया और स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ हुई है, ब्राह्मी यूज़ हुई है. इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन. तो पहली लंबी संस्कृत इंस्क्रिप्शन हुई है इंडिया की. इनको इंस्क्राइब किया गया था साका रूलर रुद्रदमन के द्वारा. इस इंस्क्रिप्शन की माने तो रुद्रदमन ने काफ़ी सारे किंग्स को उस समय डिफीट किया और उनके एरियाज़ को, उनके स्टेट्स को एनेक्स कर लिया. जिन स्टेट्स को एनेक्स किया था उनके बारे में बात करें तो वो कौन कौन सी थी. वो थी अकारा, जिसे ईस्ट मालवा कहते हैं; अवंती, जिसे वेस्ट मालवा कहते हैं; अनूप, अनर्थ, जिसे नॉर्थ काठियावाड़ कहते हैं; सौराष्ट्र, जिसे साउथ काठियावाड़ कहते हैं; शुभ्रा, जिसे द रीजन ऑफ साबरमती कहते हैं; माड़ू, जिसे मारवाड़ कहते हैं; कच्चा, जिसे कच्छ कहते हैं; सिंधु, जिसे ईस्ट ऑफ द लोअर इंडस रीजन, उसको सिंधु कहा जाता है; सुवेरा, दैट इज़ द वेस्ट ऑफ लोअर इंडस; कुकुरा रीजन, अपरंत रीजन, दैट इज़ नॉर्थ कोंकण रीजन; और निस्बदा रीजन, दैट इज़ जो वेस्ट विंध्या और अरावली का रीजन है. इन सब रीजन्स को उसने अनेक्स कर लिया था. इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि जो सुदर्शन लेक था उसकी हिस्ट्री के बारे में भी पता लगता है. इस इंस्क्रिप्शन से पता लगता है कि जो सुदर्शन लेक थी वो इस टाइम पे बर्स्ट हुई थी. ठीक है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी, बिल्कुल बुरी दुर्दशा हो गई थी. तो रुद्रदमन ने इसे रिपेयर किया गया था. सुदर्शन लेक के बारे में अगर आपको याद हो तो ये काफ़ी पुरानी लेक है और ये एग्जिस्ट करती है फ्रॉम टाइम पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका. ठीक है, कैसे पुष्यगुप्त जो थे, जो प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्होंने इस लेक को बनवाया था, सुदर्शन लेक को. और जो योनराज तुस्फक, एक ईरानियन व्यक्ति थे जो प्रोविंशियल गवर्नर थे अशोक के, उन्होंने इस लेक को रिपेयर कराया था. तो इतनी पुरानी लेक थी, इसको फिर आगे जाके रुद्रदमन ने रिपेयर कराया था. ठीक है, अपनी ऑन पॉकेट से उसने रिपेयर किया और जनता पे इस लेक को रिपेयर करने पे उसने कोई टैक्स नहीं लिया था. ठीक है, इसका रिपेयर वर्क था
वो किसके सुपरविज़न के अंडर हुआ था, तो वो सुविशक के अंडर हुआ था, सुपरविज़न के अंडर हुआ था। सुविशक अब कौन थे, जो रुद्रदमन था उनके प्रोविंशियल गवर्नर थे, ठीक है। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स की बात कर रहे हैं हम। तो एक थे पुष्यगुप्त जो प्रोविंशियल गवर्नर थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिन्होंने इस लेक को बनवाया था। फिर अशोका के जो प्रोविंशियल गवर्नर थे यौनराज तुष्फक, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। फिर रुद्रदमन के टाइम पे फिर किसी ने रिपेयर करवाया, तो उन्होंने रिपेयर करवाया रुद्रदमन ने। पर किसकी देख रेख में करवाया होगा, किसके सुपरविजन में करवाया हुआ था, तो वो कौन से प्रोविंशियल गवर्नर थे, उनके प्रोविंशियल गवर्नर थे सुविशक, ठीक है। तो ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन थी, जो जूनागढ़ की इंस्क्रिप्शन है, ये पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें लक्ष्मी को टुगेदर विद विष्णु मेंशन किया गया। तो लक्ष्मी और विष्णु को एक साथ मेंशन किया गया है। सो ये थी बात रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।